یہ خبر مدینہ بھی پہنچ گئی کہ خالد نے مالک بن نویرہ کو قتل کر کے اس کی بیوی کے ساتھ شادی کر لی ہے۔ خبر پہنچی بھی سیدھی خلیفہ المسلمین ابو بکر کے پاس، اور خبر پہنچانے والے ابو قتادہ انصاری تھے، جو اس شادی پر ناراض ہو کر مدینہ چلے گئے تھے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اس خبر کو زیادہ اہمیت نہ دی۔ انہوں نے کہا کہ خالد کو رسول اللہ نے سیف اللہ کا خطاب دیا تھا، ان کے خلاف وہ کوئی کارروائی نہیں کریں گے۔ خالد نے کسی زندہ آدمی کی بیوی کو ورغلا کر اپنی بیوی نہیں بنایا۔ ابو قتادہ انصاری خلیفہ المسلمین کے جواب سے مطمئن نہ ہوئے۔ وہ عمر کے پاس چلے گئے اور انہیں ایسے انداز سے لیلا کی خالد کے ساتھ شادی کی خبر سنائی جیسے خالد عیاش انسان ہوں اور ان کی عیش پرستی ان کے فرائض پر اثر انداز ہو رہی ہو۔ عمر غصے میں آ گئے اور ابو قتادہ کو ساتھ لے کر ابو بکر کے پاس گئے۔ خلف المسلمین عمر نے ابو بکر سے کہا، خالد کا جرم معمولی نہیں، وہ کیسے ثابت کر سکتا ہے کہ بنو یربو کے سردار مالک بن نویرہ کا قتل جائز تھا، مگر تم چاہتے کیا ہو عمر؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے پوچھا۔ خالد کی معزولی؟ عمر نے کہا، صرف معزولی نہیں، خالد کو گرفتار کر کے یہاں لایا جائے اور اسے سزا دی جائے۔ عمر ابو بکر نے کہا، میں اتنا مان لیتا ہوں کہ خالد سے غلطی ہوئی ہے، لیکن یہ غلطی اتنی سنگین نہیں کہ اسے معزول بھی کیا جائے اور سزا بھی دی جائے۔ عمر ابو بکر کے پیچھے پڑے رہے۔ دراصل عمر انتہا درجے کے انصاف پسند اور ڈسپلن کی پابندی میں بہت سخت تھے۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ سالاروں میں کوئی غلط حرکت رواج پا جائے۔ نہیں عمر، ابو بکر نے کہا، میں اس شمشیر کو نیام میں نہیں ڈال سکتا جسے اللہ نے کافروں پر مسلط کیا ہو۔ عمر مطمئن نہ ہوئے۔ حضرت ابو بکر حضرت عمر کو بھی ناراض نہیں کرنا چاہتے تھے۔ انہوں نے خالد کو مدینہ بلوا لیا۔ خالہ بڑی ہی مسافت طے کر کے بہت دنوں بعد مدینہ پہنچے اور سب سے پہلے مسجد نبوی میں گئے۔ انہوں نے اپنے امامے میں ایک تیر ارس رکھا تھا۔ عمر مسجد میں موجود تھے۔ خالد کو دیکھ کر عمر طیش میں آ گئے۔ وہ اٹھے، خالد کے امامے سے تیر کھینچ کر نکالا اور اسے توڑ کر پھینک دیا۔ تم نے ایک مسلمان کو قتل کیا ہے۔ عمر نے غصے سے کہا، اور اس کی بیوہ کو اپنی بیوی بنا لیا ہے۔ تم سنسار کر دینے کے قابل ہو۔ خالد ڈسپلن کے پابند تھے، وہ چپ رہے۔ انہوں نے عمر کے غصے کو قبول کر لیا۔ وہ خاموشی سے مسجد سے نکل آئے اور خلیفہ المسلمین ابو بکر کے ہاں چلے گئے۔ انہیں ابو بکر نے ہی جواب طلبی کے لیے بلایا تھا۔ حضرت ابو بکر کے کہنے پر خالد نے مالک بن نویرہ کے تمام جرائم سنائے اور ثابت کیا کہ وہ مسلمان نہیں بلکہ مسلمانوں کا دشمن تھا۔ حضرت ابو بکر خالد سے بہت خفا ہوئے اور انہیں تنبیہ کی کہ آئندہ ایسی کوئی حرکت نہ کرے جو دوسرے سالاروں میں غلط رواج کا باعث بنے۔ حضرت ابو بکر نے تبری اور ہیکل کے مطابق فیصلہ سنایا کہ مفتوحہ قبیلے کی کسی عورت کے ساتھ شادی کر لینا اور عدت کا عرصہ پورا نہ کرنا عربوں کے رواج کے عین مطابق۔ اس عورت کو آخر لونڈی بننا تھا۔ یہ اس کے آقا کی مرضی ہے کہ اسے لونڈی بنائے رکھے یا اسے نکاح میں لے لے۔ حضرت ابو بکر نے اپنے فیصلے میں کہا کہ اس وقت مسلمان ہر طرف سے خطروں میں گھرے ہوئے ہیں، قبیلے باغی ہوتے جا رہے ہیں، اپنے پاس نفری بہت تھوڑی ہے۔ ان حالات میں اگر کوئی سالار دوشم کی سالار دشمن کے کسی سردار کو غلطی سے قتل کرا دیتا ہے تو یہ سنگین جرم نہیں۔ عمر کو خلیفہ المسلمین ابو بکر نے یہ کہہ کر ٹھنڈا کیا کہ اسلام کا ایک بڑا دشمن مسلمہ بن حنیفہ نے نبوت کا دعویٰ کر رکھا ہے، جنگی طاقت بن گیا ہے، اس کے پاس کم و بیش 40,000 نفری کا لشکر ہے اور اکرمہ بن ابو جہل اس سے شکست کھا چکے ہیں۔ اب سب کی نظریں خالد کی طرف اٹھ رہی ہیں۔ اگر مسلمہ کو شکست نہ دی گئی تو اسلام مدینہ میں ہی رہ جائے گا۔ اس کامیابی کے لیے صرف خالد موزوں ہیں۔ عمر خاموش رہے، انہیں بھی ان خطروں کا احساس تھا۔ حضرت ابو بکر نے خالد کو حکم دیا کہ فوراً بتا جائیں اور وہاں سے یمامہ پر چڑھائی کر کے اس فتنے کو ختم کر دیں۔
खालिद एक बड़ी ही खतरनाक जंग लड़ने के लिए रवाना हो गए। दिसंबर 632 ईस्वी शवाल 11 हजरी के तीसरे हफ्ते में खालिद बिन वलीद ने 13,000 मुजाहिदीन से मुर्तद्दीन के 40,000 से ज्यादा लश्कर के खिलाफ यमामा के मकाम पर वो जंग लड़ी जिसे इस्लाम की पहली खूनरेज जंग कहा जाता है। इस जंग का आखिरी मरका एक विस्टबाग हदीका अर्रहमान में लड़ा गया था। वहां दोनों तरफ इस कदर जानी नुकसान हुआ था कि हद अर्रहमान को लोग हद अलमौत मौत का बाग कहने लगे। आज तक उसे हदीका अलमौत कहा जाता है। उस वक्त खालिद मदीना में थे। उन्हें खलीफा अल-मुस्लिमीन हजरत अबू बकर ने हजरत उमर की इस शिकायत पर जवाब तलबी के लिए मदीना बुलाया था कि उन्होंने मालिक बन नवीरा को कत्ल करा के इसकी बीवी लैला के साथ शादी कर ली थी। हजरत अबू बकर ने उन हालात को देखते हुए जिनमें इस्लाम गिर गया था, खालिद के हक में फैसला दिया और खालिद को वापस बता जाने और यमामा के मिसलमा कज़्ज़ाब के फितने को खत्म करने का हुक्म दिया था। मिसलमा कज़्ज़ाब के मुतालिक बताया जा चुका है कि उसने नबुव्वत का दावा कर रखा था। इसके पैरोकारों की तादाद इतनी ज्यादा हो गई थी कि इसका लश्कर मुसलमानों के लिए खतरा बन गया था। इस वक्त तक मुसलमान एक ताकत बन चुके थे, लेकिन मस्लिमा की ताकत बढ़ती जा रही थी। ये मदीना के लिए भी खतरा था और इस्लाम के लिए भी। मदीना सल्तनत इस्लामिया का मरकज था। खालिद का लश्कर बता में था। वहीं उन्होंने मालिक बन नौरे को सजाए मौत दी और उसकी बीवी लैला के साथ शादी की थी। लैला वहीं थी। खालिद बता को रवाना हो गए। उन्हें मालूम था कि उनके पुराने साथी सालार उक्रमा इसी इलाके में अपने लश्कर के साथ मौजूद हैं और मसलमे के खिलाफ मदद को पहुंचेंगे। उक्रमा बिन अबू जहल इन 11 सालारों में से थे जिन्हें खलीफा अल-मुस्लिमीन ने मुख्तलिफ इलाकों में मुरीद और बागी कबाइल की सरकोबी के लिए भेजा था। दूसरे कबीले इतने ताकतवर नहीं थे जितना मिसलमा का कबीला बन्नू हनीफा था, इसलिए इस इलाके में उक्रमा को भेजा गया था। उनके पीछे पीछे एक और सालार शर्जील बिन हसना को भेज दिया गया। खलीफा हजरत अबू बकर ने शर्जील को यह हुक्म दिया था कि वो मुकर्रमा को मदद देंगे। उक्रमा यमामा की तरफ जा रहे थे। ये 2 अढ़ाई महीने पहले की बात है। उस वक्त खालिद तलीहा से नबर्द आजमा थे। उन्होंने तलीहा को बहुत बुरी शिकस्त दी थी। ये खबर उक्रमा तक पहुंची तो वो जोश में आ गए। उन्होंने अभी किसी कबीले के खिलाफ जंगी कार्रवाई नहीं की थी। कुछ दिनों बाद उक्रमा को खबर मिली कि खालिद ने सलम के ताकतवर लश्कर को शिकस्त दी है। मुअर्रिख लिखते हैं कि उक्रमा पर इंसानी फितरत की एक कमजोर छोटिया गालिब आ गई। उन्होंने अपने साथी सालारों से कहा कि खालिद फतह पर फतह हासिल करते जा रहे हैं और उन्हें अभी लड़ने का मौका भी नहीं मिला। खालिद और उक्रमा इस्लाम कबूल करने से पहले के साथी और एक जैसे जंगजू और मैदान जंग के एक जैसे कायद थे। क्यों ना हम एक ऐसी फतह हासिल करें जिसके सामने खालिद की तमाम फतूहात की अहमियत खत्म हो जाए। उक्रमा ने अपने मातहत सालारों से कहा, मुझे इत्तला मिल चुकी है कि शर्जील बिन हसना हमारी मदद को आ रहा है। मालूम नहीं वो कब तक पहुंचे। मैं ज्यादा इंतजार नहीं कर सकता। मैं मसलमे पर हमला करूंगा। मसलमे मामूली अक्लो जहानत का आदमी नहीं था। इसे मालूम था कि मुसलमान इसकी नबुव्वत को बर्दाश्त नहीं कर रहे और किसी भी रोज इस्लामी लश्कर इस पर हमला कर देगा। उसने अपने इलाके के दिफा का बंदोबस्त कर रखा था, जिसमें देखभाल और जासूसी का इंतजाम भी शामिल था। उक्रमा सोचे समझे बगैर बढ़ते गए और यमामा के करीब पहुंच गए। वो चूंकि हीदबात से मगलूब होकर जा रहे थे, इसलिए एहतियात न कर सके कि दुश्मन देख रहा होगा। उन्हें मिसलमा के जासूसों ने देख लिया और मसलमे को इत्तिला दी। एक और इलाके में जहां ऊंचे टीले और टेकरियां थीं, उक्रमा को मिसलमा के कुछ आदमी दिखाई दिए। उक्रमा ने इन पर हमला कर दिया, मगर ये मिसलमा का बिछाया हुआ जाल था। मिसलमा ने वहां खासा लश्कर छुपा रखा था, जिसने दाएं बाएं से उक्रमा के लश्कर पर हमला कर दिया। उक्रमा इस गैर मुतवक्के सूरत हाल में संभल ना सके। मिसलमा के लश्कर ने उन्हें संभलने दिया ही नहीं। इक्रमा नामी ग्रामी और तजुर्बाकार सालार और कमानदार थे।
लेकिन मैदान दुश्मन के हाथ था। उसने मुसलमानों की कोई चाल कामयाब न होने दी। उक्रमा को नुकसान उठाकर पसपा होना पड़ा। उक्रमा अपनी इस शिकस्त को छुपा नहीं सकते थे। छुपा लेते तो लश्कर में से कोई मदीना इत्तिला भेज देता। चुनांचे उक्रमा ने खलीफा अल मुस्लिमीन को लिख भेजा कि उन पर क्या गुजरी है। खलीफा हजरत अबू बकर को सख्त गुस्सा आया। उन्होंने उक्रमा को वाज़े हुक्म दिया था कि शर्जील का इंतजार करें और अकेले मिसयलमा के सामने न जाए, मगर उक्रमा ने जल्दबाजी से काम लिया था। हजरत अबू बकर ने उक्रमा को जो तहरीरी पैगाम भेजा था, इसमें गुस्से का इजहार इस तरह से किया था कि मुकरमा को इब्न अबू जहल लिखने के बजाय उक्रमा तकरमा की मां के बेटे ने लिखा। ये अरबों में रिवाज था कि किसी की तौहीन मकसूद होती तो इसके बाप के नाम के बजाय इसे इसकी मां से मंसूब करते थे। खलीफा अल मुस्लिमीन ने लिखा, ए उक्रमा, मैं तुम्हारी सूरत नहीं देखना चाहता। मैं ये भी नहीं चाहता कि मदीना आओ। तुम आए तो यहाँ के लोगों में मायूसी फैलाओगे। मदीना से दूर रहो। तुम अब यमामा का इलाका छोड़ दो और हुज़ैफा के साथ जा मिलो और अहले उमान से लड़ो। वहां से फारिग होकर उर्फजा की मदद के लिए मोहरा चले जाना। इसके बाद बैन जाकर मुहाजिर बन उमिया से जा मलना। जब तक तुम सालारी के मयार पर पूरे नहीं उतरते मुझे अपनी सूरत न दिखाना। मैं तुमसे बात तक नहीं करूंगा। खुल्फ अल मुस्लिमीन हजरत अबू बकर ने शर्जील को पैगाम भेजा कि वो जहां हैं वहीं रहें और जब खालिद मिले तो अपना लश्कर उनके साथ करके खुद उनके मातहत हो जाएं। खालिद को बता दिया गया था कि शर्जील का लश्कर भी उन्हें मिल रहा है। वो खुश हुए कि अब वो मिसयलमा का मुकाबला बेहतर तरीके से कर सकेंगे। उन्हें तवक्को थी कि शर्जील का लश्कर ताज़ा दम होगा, मगर यह लश्कर खालिद को मिला तो वो ताज़ा दम नहीं था। इसमें कई मुजाहिदीन जख्मी थे। क्या हुआ शर्जील? खालिद ने पूछा। नदामत के सवा मेरे पास कोई जवाब नहीं। शर्जील ने कहा, मैंने खलीफा अल मुस्लिमीन की हुक्म उदूली की है। मेरे लिए हुक्म था कि उक्रमा को मदद दूं, मगर मेरे पहुंचने से पहले उक्रमा मिसयलमा के लश्कर से टुकर लेकर पसपा हो चुका था। ये एक खत था जिसने मुझ पर भी गलबा पा लिया कि एक फतह तुम्हारे हिसाब में लिखी जाए। बारीक बैन और दूर अंदेश खालिद ने तंजिया लहजे में शर्जील का जवाब पूरा करते हुए कहा, अकेले पत्थर की कोई ताकत नहीं होती शर्जील। पत्थर मिलकर चट्टान बना करते हैं। फिर इस चट्टान से जो टकराता है वो दूसरी बार टकराने के लिए जिंदा नहीं रहता। खुद गर्जी और जाती मुफाद का अंजाम देख लिया तुमने। उक्रमा जैसा तजुर्बाकार सालार पिटकर जलील हो चुका है। मैं तुम पर करम करता हूं कि खलीफा को तुम्हारी हमाकत की खबर नहीं होने दूंगा। शर्जील बिन हसना ने उक्रमा जैसी गलत हरकत की थी। उसने भी खालिद से बाजी ले जाने के लिए रास्ते में मिसयलमा के लश्कर से टुकर ली और पसपा होना पड़ा था। मिसयलमा कज़्ज़ाब दरबार लगाए बैठा था। ठंगिने कद वाला ये बदसूरत इंसान नबी बन चुका था। उसका कबीला बन्नू हनीफा तो उसे नबी मान ही चुका था। दूसरे कबीले के लोग जौक दर जौक उसकी बैत के लिए आते और उसकी एक झलक देखने को बेताब रहते थे। लोगों ने इसकी कुव्वत और करामात देख ली थीं। अब इस के पैरोकारों ने 2 मुजिज़े और देख लिए थे। उन्होंने मुसलमानों के 2 नामवर सालारों को जरा सी देर में मैदान से भगा दिया था। मजहबी और नजरियाती के लिहाज से तो मुसलमान रेशम की तरह नरम थे, लेकिन मैदान जंग में वो फौलाद से ज्यादा सख्त और बिजलियों की तरह कहर बन जाते थे। जंगी लिहाज से मुसलमान दहशत बन गए थे। उक्रमा और शर्जील ने अपनी गलती और कज फहमी से शिकस्त खाई थी, लेकिन बन्नू हनीफा ने उन्हें अपने कज़्ज़ाब नबी के मौजिज़ों और करामात के खाते में लिख दिया। वो कहता था कि मुसलमानों को मिसयलमा के सवा कौन शिकस्त दे सकता है। निहार उल रिजाल। मिसयलमा ने अपने पास बैठे हुए अपने दस्न रास्त निहार उल रिजाल से कहा, अब हमें मदीना की तरफ कूच की तैयारी करनी चाहिए। मुसलमानों में अब वो दम खम नहीं रहा। पहले बयान हो चुका है कि निहार उल रिजाल बिन उन्फो वो शख्स था जिसने रसूल करीम के साए तले बैठकर कुरान पढ़ा और मजहब पर उबूर हासिल किया था,
और इसे मुबल्लिग बनाकर मुस्लिमा के इलाके में भेजा गया था, मगर इस पर मुस्लिमा का जादू जेल गया। उसने मुसलमा की नबूवत का प्रचार शुरू कर दिया। आयात कुरानी को तोड़ मोड़ कर उसने इन लोगों को भी मुसलमा का पैरोकार बना दिया जो इस्लाम कबूल कर चुके थे। मुसलमा ने इसे अपना मोतमिद खास बना लिया था। ये शराब और निस्वानी हसन का जादू था। खुद मुसलमा, जिसकी शक्ल व सूरत मकरूही थी और कद मुज़हका खेज हद तक ठगना था, औरतों में ज्यादा मकबूल था। मुअर्रिख लिखते हैं कि औरतों के लिए इसमें एक मखसूस कशिश थी। सजा जैसी औरत जो क़लोतुर्रा की तरह जंगी कुव्वत लेकर मुसलमा को तह तेग करने आई, सिर्फ एक मुलाकात में इसकी बीवी बन गई थी। ये मुस्लिमा की जिस्मानी ताकत और मकनातिसियत थी। अब तो वो बहुत बड़ी जंगी ताकत बन गया था। उक्रमा और शर्जील को पसपा करके इसके अपने और इस के लश्कर के हौसले बढ़ गए थे। वो अब मदीना पर चढ़ाई की बातें कर रहा था। वो दरबार में बैठा निहार उल रिजाल से कह रहा था कि मदीना की तरफ कोच की तैयारी करनी चाहिए। निहार उल रिजाल कुछ कहने भी नहीं पाया था कि मुसलमा को इत्तला दी गई कि एक जासूस आया है। मुसलमा ने इसे फौरन बुला लिया। मुसलमानों का लश्कर आ रहा है। जासूस ने कहा, तादाद 10 और 15 हजार के दरमियान है। तुमने जब देखा ये लश्कर कहाँ था? मुसलमा ने पूछा। वादी हनीफा से कुछ दूर था। जासूस ने कहा, अब और आगे आ चुका होगा। इन बदबख्तों को मौत वादी हनीफा में ले आई है। मुसलमा ने रौनक से कहा, उन्हें मालूम नहीं कि उनका 10-15 हजार का लश्कर मेरे 40 हजार शेरों के हाथों चीरा फाड़ा जाएगा। वो उठ खड़ा हुआ। तमाम दरबारी एहतराम के लिए उठे। वो निहार उल रिजाल को साथ लेकर दरबार से निकल गया। उसने अपना घोड़ा तैयार कराया, निहार उल रिजाल को साथ लिया और दोनों घोड़े उन्हें यमामा से दूर ले गए। वो वादी हनीफा की तरफ जा रहे थे। इस वादी से वो जिंदा नहीं निकल सकेंगे। रास्ते में मुसलमा ने निहार उल रिजाल से कहा, मेरे इस फंदे से वो वाकिफ नहीं। तुम्हार उल रिजाल ने कहकहा लगाया और कहा, आज मोहम्मद का इस्लाम वादी हनीफा में दफन हो जाएगा। वो आधा रास्ता तय कर चुके थे कि आगे से एक गेवड़ सवार घोड़ा सर पर दौड़ाता आ रहा था। मुसलमा को देखकर वो रुक गया। यानी गेवड़ सवार ने हानपत्ती हुई आवाज में कहा, मजामिया बन मरारा को मुसलमानों ने कैद कर लिया है। मजामिया को? मुसलमा ने हैरत से कहा, मजामिया को मुसलमानों ने? निहार उल रिजाल ने डरी हुई सी आवाज में कहा, मजा अलैहिस्सलाम की टुकर का हमारे पास और कोई सालार नहीं। मुसलमा ने कहा, मजा अलैहिस्सलाम का कैद हो जाना हमारे लिए अच्छा शगुन नहीं। मजामिया बिन मरारा मुसलमा का बड़ा ही काबिल और दलेर सालार था। वो खालिद से मिलता जलता था। मौरखों ने लिखा है कि खालिद के मुकाबले में लड़ने और जंगी चालें चलने की अहलियत सिर्फ मजामा में थी। मजामिया मुसलमानों के हाथ इस तरह चढ़ गया था कि उसके किसी करीबी रिश्तेदार को बनी आमिर और बनी तमीम के कुछ लोगों ने कत्ल कर दिया था। मजामिया ने मुसलमा से इजाजत ली थी कि वो लश्कर के 40 सवार साथ ले जाकर अपने रिश्तेदार के कत्ल का इंतकाम ले ले। मुसलमा अपने इतने काबिल सालार को मायूस नहीं कर सकता था। उसने उसे इजाजत दे दी। मजा अलैहिस्सलाम अपने दुश्मन की बस्ती में गया और इंतकाम लेकर वापस आ रहा था। इसे मालूम नहीं था कि जिस इलाके को वो महफूज समझता था वो अब महफूज नहीं। उसने अपने सवारों को एक जगह आराम के लिए रोक लिया। वो सब अपना फर्ज कामयाबी से पूरा कर आए थे। घोड़ों की जीनें उतार कर वो लेट गए और गहरी नींद सो गए। खालिद का लश्कर इसी तरफ आ रहा था। अली असुबह इस लश्कर का हर अव्वल दस्ता वहां पहुंचा जहां मजा अलैहिस्सलाम अपने 40 सवारों के साथ गहरी नींद सोया हुआ था। इन सब को मुजाहिदीन ने जगाया, उनसे हथियार और घोड़े ले लिए और उन्हें हिरासत में लेकर पीछे खालिद के पास ले गए। खालिद को मालूम नहीं था कि मजामिया मुसलमा का बड़ा कीमती सालार है। खालिद इसे भी महज सवार सिपाही समझ रहे थे। उन्होंने दरअसल बड़ा मोटा शिकार पकड़ा था।
उन्होंने ये तो बता दिया कि वो मिसयलमा की फौज के आदमी हैं, लेकिन मजा अलैहिस्सलाम का रुतबा जाहिर न होने दिया। क्या तुम हमारे मुकाबले के लिए आए थे? खालिद ने इनसे पूछा। नहीं, एक ने जवाब दिया, हमें तो मालूम ही न था कि मुसलमानों का लश्कर आ रहा है। हम बनी आमिर और बनी तमीम से अपने एक खून का बदला लेने गए थे। मैंने मान लिया। खालिद ने कहा, मैं तुम्हारी जान बख्शी कर सकता हूं। अब मेरे इस सवाल का जवाब दो कि तुम किसे अल्लाह का सच्चा रसूल मानते हो और किस पर ईमान रखते हो। बेशक मुसलमान अल्लाह का सच्चा रसूल है, एक सवार ने जवाब दिया है, खुदा की कसम। खालिद ने कहा, तुम मेरी तौहीन कर देते तो मैं तुम्हें बख्श देता, अपने रसूल की तौहीन को मैं किस तरह बर्दाश्त कर सकता हूं। तुम अपने रसूल को मानो, हम अपने नबी को मानते हैं। मजामिया ने कहा, असल बात भी यही है कि मुसलमान रिसालत का बराबर का हिस्सादार है। हम सब का अकीदा यही है। सवारों ने कहा, एक नबी तुम में से है और एक नबी हम में से है। खालिद ने तलवार खींची और एक ही वार से एक सवार का सर उड़ा दिया और हुक्म दिया कि सबको कत्ल कर डालो। खालिद के आदमी आगे बढ़े और मजा अलैहिस्सलाम को पकड़कर उसका सर काटने के लिए झुका दिया। इसे कत्ल करने वाले की तलवार हुआ में बुलंद हुई। हाथ रोक लो। कैदी सवारों में से एक, जिसका नाम सारिया बिन आमिर था, चलाया, इस आदमी को जिंदा रहने दो, ये तुम्हारे काम आ सकता है। तब इंकिशाफ हुआ कि मजामिया बन्नू हनीफा के सरदारों में से है, लेकिन ये फिर भी ना बताया गया कि ये सालार भी है। खालिद दूर अंदेश थे। किसी कबीले का सरदार बड़ा कीमती यरगमल होता है, से किसी न किसी मौके पर इस्तेमाल किया जा सकता था। खालिद मजामा के पांव में बेड़ियां डलवाकर उसे अपने खेमे में ले गए और इसे अपनी बीवी लैला के हवाले कर दिया। बाकी सबको कत्ल करा दिया। मुसलमा के लिए मजामिया की गिरफ्तारी कोई मामूली नुकसान नहीं था, लेकिन वादी हनीफा वो फंदा था जो इस नुकसान को पूरा कर सकता था। इसके अलावा मुसलमा के लश्कर की तादाद 40,000 थी और मुसलमानों की तादाद 13,000 थी। मुसलमा के पास गेवड़ सवार और शुतर सवार दस्ते ज्यादा थे।